Assalamu alaikum to all my dear students and everyone who is watching GEMS TV, especially my program, The Bio Teacher with Muneera Khan. So, as you all know, we are just completing the syllabus of CIs and we are having so many topics in this syllabus, and we have covered few of the topics like five topics and subtopics we have completed, and we are doing sixth topic that is the plant nutrition जो कि हम कर रहे हैं, that is the going on. Or we have discussed so many things about plant, and you know very important thing that this subject biology is all about life and logy means to study. So we are studying about the life and what type of things going on in our body, in plant body, in animal body, or in an organism. So basically we all are living organisms, so we have to just learn about ourselves, and we have to learn so many things that we are going on. So as you know that plants are the basic unit of food chain, as if you are just eliminating out the plants and you are just saying plants are not that much important, so just be mindful that plants are very important. If there are no plants, means whole food chain is eliminated. So we cannot survive if the plants are not there. तो ये आपको पता है, and a few days before some of my students were asking कि भाई miss we are having one assignment, and our teacher has given कि भाई you have to talk about the deforestation, deplantation. So at that time I didn't given the answer because वो teachers के लिए नहीं था, वो student से ही पूछना था. But here, as the plant nutrition, the plant related chapter is going on, so I am just adding my points and my views in it. So as I have told कि भाई अगर आप plant को निकाल दें food chain से, तो इसका मतलब है कि everything is going to be eliminated out. क्यों ऐसा होता है? I am just making one very important thing here. और वो इम्पोर्टेंट थिंग भाई क्या है कि हम ये कहते हैं कि एज यू नो, अच्छा देयर आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ photosynthesis, and there are so many organisms which are depending on plants directly and indirectly. How? I am just sharing ke as you know there are so many herbivores. Herbivores means those animals who are feeding, who are eating plants. They are having plants as their food. So when they are eating plants, so they are known as herbivores. A part of plants, they are not eating anything. And the common and the most suitable example is like you are having goat, you are having cow, you are having rabbit. So there are so many organisms who are just feeding on plants. They are not eating anything a part of plants. So अगर ये directly eat करते हैं plants को, so they are known as herbivores animals. And some organisms are carnivores, like they are eating flesh, they are eating meat. For example, if I'm saying ke by cat is there, dog is there, tiger, lion, all these organisms are carnivores, means they are eating what? They are eating flesh. तो अब हमें देखना ये है कि ये तो गोश्त खा रहे हैं, तो फिर ये क्यों जो है वो फूड चेन में प्लांट को इम्पोर्टेंस दें? इसलिए दें क्योंकि ये जो मीट खा रहे हैं, ये जिस एनिमल का फ्लैश खा रहे हैं, वो किसको खा रहा है? वो बेसिकली इसी तरह से हम ये कहते हैं कि वी ऑल आर कनेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड. तो carnivores animals are those animals which are just feeding, they are eating meat. And then omnivores are there. Omnivores, as we are the omnivores, we are eating both plants and we are eating animals as well. So we are known as omnivores. So directly and indirectly we are depending on प्लांट्स. ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी चीज थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने प्लांट न्यूट्रिशन का एक ओवरव्यू आपको दिया है. यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद हम दोबारा से कनेक्ट होते हैं और फिर हम इसको देखते हैं कि आज का हमारा सब टॉपिक कौन सा है. एज द टॉपिक, मेन टॉपिक इज प्लांट न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज द subtopic of this plant nutrition. So just stay with me and I'm coming back within 2 minutes. पाकिस्तान कॉलिंग के मेहमान
एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कश्मीर की जंग आज़ादी के मुजाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद इफ्तिखार अहमद, तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री। पैवस्त शजर से उम्मीद बहार रख। पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है और पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है। Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. झूठ और फरेब इस दौर में रद्द कुफर, पाकिस्तान कॉलिंग। पाकिस्तान कॉलिंग के मेहमान, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कश्मीर की जंग आज़ादी के मुजाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद इफ्तिखार अहमद, तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री। पैवस्त शजर से उम्मीद बहार रख। पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है और पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है। Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. झूठ और फरेब इस दौर में रद्द कुफर, पाकिस्तान कॉलिंग। पाकिस्तान कॉलिंग के मेहमान, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कश्मीर। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। या साली गजीदी कहते हैं कि मुतमईन हो गए तुम मेरे लबों को सीकर, ये न सोचा मेरी आंखों में भी गोयाई है। या जाजिर मुख्तार कहते हैं कि बना के रास्ता दिल की गली में तुम आए, कोई ना आया मेरी जिंदगी में तुम आए। या अकबर मासूम कहते हैं कि बाहर आते हैं आंसू अंदर से, जाने अंदर कहां से आते हैं। और अनवर बरेलवी कहते हैं कि जो अपना जज्बा मिसाले फरहाद मानते हो तो आजमा लो, पहाड़ ये है कुदाल ये है। और इफ्तिखार अंजुम कहते हैं कि मैं फासले दश्तो चमन तुमको बताऊं, बस जुम्बिश यक्काम इधर से है उधर तक। या अतीक जिलानी कहते हैं कि मेरे अहबाब सलामत रहें दायम, लेकिन साफ कहता हूं कि दो चार से खौफ आता है। या सईद दोषी कहते हैं कि So welcome back once again, and as I have told you before break that we are doing plant nutrition, and the subtopic and the last subtopic of this particular chapter, we are just going to start the mineral nutrition. And as you all know, mineral nutritions, there are very important nutrients are there, the 7 major classes of nutrients if we are talking about ourselves. So the nutrients are of so many types like carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, mineral ions, water. So these are all
the nutrients. But if we are talking about the plants, so plants are having few very important minerals that are very necessary for the plants. अब क्यों necessary हैं? For their growth, for their you can say colors. So there are so many things which are going on in plants body. So before just sharing the actual topic, I'm just learning और रीडिंग आउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमें CRI के सिलेबस में मिले हुए हैं. सो द फर्स्ट learning objective is explain the importance of nitrate ions. What we have to do, we have to discuss about the nitrate ions. This one is the first point. This one nitrate ions हम discuss करेंगे. And second one is explain the importance of magnesium ions. So magnesium ions we have to discuss. ठीक है? So just starting this particular topic. So moving on, the importance of nitrate ions, why they are important, why plants require nitrate ions for their growth, for the better development of their selves. तो क्या है यहाँ पर कि nitrates are a form of nitrogen that plants absorb through their roots. So this is the very important point that you have to remember, that nitrate ions. अब आपको ये समझ में आ रहा है कि nitrate ions is basically having nitrogen in it. ठीक है, nitrate word ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद होगी, nitrogen is present. So if I'm just writing over here कि भाई नाइट्रोजन तो है, इसके अंदर नाइट्रेट्स क्या हैं, बेसिकली नाइट्रेट्स कंपाउंड्स हैं जो कि अगर आप आयंस कर दें, हम ये कहते हैं कि व्हेन द एलिमेंट्स आर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये अब आयन बन गया है. So if we are talking about the nitrate ions, so basically in nitrate ions, ions के nitrogen is present that plants absorb through their roots. अब ये कैसे absorb करता है? Roots के through. As you all know कि roots are present where? In the ground, and for example this lower side portion, the roots are present where? In the soil. Soil के अंदर क्या है? Roots हैं. ठीक है. So now roots का अगर आपको फंक्शन पता हो कि वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, एज इट इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ अ प्लांट बॉडी, तो प्लांट का एक ऑर्गन है तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा. अब आप बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि हम बाहर जा जाके रूट्स प्लांट्स को जो है वो वाटर प्रोवाइड नहीं कर रहे होते. प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, लेकिन विच पार्ट, विच ऑर्गन? रूट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर. ठीक है. सो रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर, along with water they are absorbing what? Ions which are present in the soil. तो ये जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, और आपने देखा होगा अक्सर के क्रॉप्स की बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स. सो व्हाई दे आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स? बिकॉज दे आर हैविंग दीज आयंस. और जब ये इसका स्प्रे किया जाता है, इसको प्रोवाइड किया जाता है सॉइल में, तो नेचुरली भी सॉइल में ये आयंस जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है, क्योंकि बेसिकली देयर इज द होल साइकिल. अगर आपने हमारा आगे चैप्टर आएगा जिसमें पूरी एक नाइट्रोजन साइकिल वी हैव टू डिस्कस, कार्बन साइकिल वी हैव टू डिस्कस. तो ये नाइट्रोजन, कार्बन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच आर जस्ट प्रेजेंट you can say in this planet Earth, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही होती हैं. ठीक है. सो वो एक अलग टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बस जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग दीज आयंस एंड दीज आयंस आर प्रेजेंट वेयर? इन द सॉइल, एंड दे आर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर सेल्स. सो दे आर यूज्ड बाय द प्लांट्स टू क्रिएट amino acids, or you can say amino acids, both pronunciations are right. amino acids क्या करते हैं? ये ज़रूरी क्यों है? नाइट्रेट आयंस की क्या ज़रूरत पड़ गई प्लांट्स को? बेसिकली they can form, these ions can form amino acids in plants. अब आपको ये पता है, हम ये पढ़कर आए हैं, when so many amino acids are combining together, for example this one is amino acid second, third and fourth. अब आप इसको अगर ये कंबाइन हो गए एक साथ, तो अब आप इसको कहेंगे ये क्या बन गया? वन मॉलिक्यूल ऑफ अ प्रोटीन. तो अब आपको ये पता चल गया कि फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट विच थिंग इज रिक्वायर्ड?
nitrate ions because they are making amino acids. Amino acids, when combining together, they are forming proteins, and protein is important for the development of a plant body. कैसे ग्रो होगा वो, उसकी कैसे जो है वो प्रॉपर ग्रोथ होगी, वो इसी वजह से होगी जब उसके पास अमीनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, और वो कैसे होंगे जब नाइट्रेट आयंस मौजूद होंगे और प्रेजेंट होंगे. So a plant cannot photosynthesize, cannot grow to its full potential without nitrates. A plant will not be able to photosynthesize properly, which is the process by which plants absorb nutrients from the sun. तो अब आपको ये भी पता है, this particular point we have discussed so many times कि भाई plants are making their own food by the help of photosynthesis. तो आप ये कह रहे हैं कि भाई photosynthesis is going on, and if there is no photosynthesis, so without nitrate a plant will not be able to photosynthesize properly. और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, नाइट्रेट भी नहीं होंगे, तो प्लांट की स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. देर आर नॉट मच डिटेल्स ऑफ दीज आयंस. दीज आर वेरी सिंपल एंड दे हैव प्रोवाइडेड अस जस्ट वेरी two learning objectives कि भाई you just have to stuck on the nitrate ions and what is the function of nitrate ions, and second is they have to said कि भाई you have to stuck on the magnesium ion. So I'll tell you what is magnesium ion and its importance. Now here is one of the diagram you are seeing and that is present on the screen कि अब आपको एक बहुत आसान सी चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है कि हेल्दी प्लांट, अ पॉट ऑफ हेल्दी प्लांट, ये आप साइड ए मार्क कर दें और साइड बी इट इज बेसिकली द वीक प्लांट. ठीक है, इसको आपने साइड बी से मार्क कर दिया. नाउ सी द टू डायग्राम्स ए एंड बी. ठीक है, what is the difference between these two diagrams? As you are seeing the very you can say the differences are very visual. बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, आसानी से आप देख सकते हैं कि as you are seeing the proper growth of leaves are there. प्रॉपर ग्रोथ है, साइज इंक्रीज साइज इज देयर. बट अगर आप वीक साइड पर देखते हैं तो द लीव्स आर वेरी स्मॉलर इन साइज. देयर इज नॉट द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. ये हमें नजर आ रहा है देखकर कि देयर इज अ स्टंट ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एंड देयर इज द हेल्दी, दिस साइड इज द शोइंग द हेल्दी प्लांट क्योंकि इसकी प्रॉपर ग्रोथ हुई हुई है. लीव्स बहुत क्लियर हैं, प्रॉपर हैं, स्ट्रक्चर उसका इन लार्ज स्ट्रक्चर है. सो ये किस लिए है? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि इन दिस पॉट, इन द पॉट ऑफ हेल्दी प्लांट, इसकी सॉइल में अमाउंट ऑफ नाइट्रेट ज़्यादा हो या अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इज प्रेजेंट, सफिशिएंट अमाउंट. बट एट साइड बी अगर आप देखते हैं जो वीकर प्लांट है जो हमें नज़र आ रहा है उसमें हो सकता है the amount of nitrate is not present in a sufficient amount. That is why it is having the stunt growth. तो ये differences हैं और I hope कि ये clear हो गया होगा. There is nothing difficult in it. You just have to stuck or you just have to remember this point कि nitrate ions present where in the soil, and plants are absorbing nitrate ions by the root hair cells. Second point. Third, you have to remember that why they are important. Ions, nitrate ions, why they are important? Because they are making amino acids. Amino acids, when combining together, they are making proteins, and proteins are very, very important for the growth of a plant, for the repairing of the tissues, or you can say for cell division, for making new cells. There are so many functions of proteins which are going on in plants body as well as in animals body. हमारी body में भी there are so many functions, or you can say there are so many things which are going on in animals body. ठीक है, तो I hope कि ये clear हो गया होगा. And the second ion we are starting, and that is the importance of magnesium ion. The magnesium ion, the first thing which is coming in our mind कि भाई magnesium ions कहाँ होते हैं? As a nitrate ions present in the soil, the magnesium ions present where, and what type of function they are performing in plant body. So very important thing is कि भाई as you are seeing कि chlorosis is one of the condition in which leaves produce insufficient chlorophyll. यहाँ पर इसको बता दिया है उन्होंने बहुत clear words में
जो है वो मेंशन कर दिया है कि क्लोरोसिस इज वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है। हम जैसे देयर आर सो मेनी डिजीजेस, हमारे अंदर कोई अगर ऐसी बीमारी हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है, हम उसको मार्क कर देते हैं किसी नाम से। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कैंसर इज वन ऑफ द डिजीज, या आप कहते हैं कि एलिमेंट्री डिसऑर्डर इज द एलिमेंट्री कैनाल। तो अब यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन है, तो क्लोरोसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन। हो क्या रहा है इस क्लोरोसिस में, इज अ कंडीशन इन विच लीव्स प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्लोरोफिल। लीव्स क्या करते हैं, एज यू ऑल नो कि लीव्स आर हैविंग ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक पिगमेंट मौजूद है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, क्लोरोसिस में क्या होता है कि प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन नहीं रहता, मींस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे समझ लें कि एक इंक की बॉटल है, रेड कलर रेड कलर की इंक की बॉटल है, उसमें आपको सिर्फ रेड कलर ही नजर आ रहा होगा, प्योर रेड कलर, ठीक है। और अब आप क्या करें, उसके कुछ ड्रॉप्स आप एक ग्लास ऑफ वाटर में पोर कर दें। नाउ सी द डिफरेंस कि ग्लास ऑफ वाटर में अगर आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ इंक पोर किए हैं तो उसका कलर क्या होगा, पिंकिश सा कलर आपको अपीयरेंस नजर आएगी। ऐसा कलर नहीं होगा जो कि इंक की बॉटल का कलर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अमाउंट कम है। इसी तरह से इन लीव्स इफ देयर इज insufficient amount of chlorophyll, so the color of the leaves will be changed and this condition is known as chlorosis, ठीक है। So chlorosis is typically caused when leaves do not have enough nutrients to synthesize all the chlorophyll they need। क्या हो रहा है इसमें, ये कंडीशन, और ये क्यों हो रहा है कि एज लीव्स जो है हमारे पास, लीव्स डू नॉट हैव इनफ न्यूट्रिएंट्स टू सिंथेसाइज ऑल द क्लोरोफिल दे नीड, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में ऑब्वियसली एक बीमारी है, एक टर्म हमने यूज किया है, क्लोरोसिस। नाउ हियर इज द एग्जांपल। अच्छा, बिफोर शोइंग दिस एग्जांपल आई एम टेलिंग यू दिस वन, ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि एज यू आर सीइंग some leaves are having yellowish color, डार्क ग्रीन कलर नहीं है, और ये आपको आराम से नजर आ रहा है। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट, एक प्लांट को देखकर आप आराम से पता लगा सकते हैं कि यार इसके अंदर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल सफिशिएंट अमाउंट में है या इनसफिशिएंट अमाउंट में है। सो दिस इज अ वेरी क्लियर डायग्राम एंड यू आर सीइंग कि सम ऑफ द लीव्स आर हैविंग डार्क ग्रीन कलर एंड सम ऑफ द लीव्स आर हैविंग yellowish color. So why they are having difference in colors? Because these leaves are having insufficient amount of chlorophyll. Why? Because insufficient amount of magnesium ion जो कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस करवा रहा है। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं, सो इट इज हैविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आयन जो कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस करवा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, और इसको पीछे ही लेकर जाती हूँ मैं, द डायग्राम विच आई हैव शेयर्ड यू बिफोर। दिस इज द डायग्राम। सो वेरी फर्स्ट थिंग, येलोइंग बिटवीन वेन्स ऑफ लीव्स, और इसको आप कह रहे हैं क्लोरोसिस। यानी कि क्या हो रहा है कि ये जो लीव्स का कलर है ये चेंज हो रहा है, कुछ डार्क ग्रीन होंगे और कुछ लाइट ग्रीन होंगे। इट सीम्स लाइक कि येलोइश कलर बिटवीन द वेन्स। तो आपको ये कंडीशन नजर आ गई। ये कब हो रहा है, मैग्नीशियम आयन डेफिशिएंसी होगी तो ये स्टेट है, ये कंडीशन है। और मैग्नीशियम आयन इफ प्रेजेंट सफिशिएंट अमाउंट, तो इसका डार्क ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है। फुल न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी ग्रोथ इज देयर, ठीक है। और फिर आप ये कहते हैं कि आपके पास नाइट्रेट आयंस की डेफिशिएंसी अगर है, तो एज यू आर सीइंग के हेयर वी आर हैविंग स्टंट ग्रोथ as well as yellowing of the leaves. So leaves are becoming yellowish in color and they are having stunt growth, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और आप ये देखते हैं कि अगर न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको एग्जैक्टली सेम अमाउंट में मिलते हैं तो सही है, और अगर नहीं मिलते तो वो फिर वही वाली चीज है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है। और अगर आप ये कहते हैं कि प्लांट्स का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर शोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। आपको नजर आ रहा है कि हेल्दी प्लांट, सेंटर वाला प्लांट बिल्कुल हेल्दी प्लांट है जिसमें न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हैं, बोथ नाइट्रेट आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। लेकिन अगर नहीं है तो उसकी स्टंट ग्रोथ आपको नजर आ रही है, यानी कि इसका
इसकी आप लेंथ देखें प्लांट की और इसकी लेंथ देखें तो इसमें स्टंट ग्रोथ ड्यू टू द लैक ऑफ मैग्नीशियम आयन और नाइट्रेट आयंस की डेफिशिएंसी की वजह से वहां पर क्या हुआ है कि लीव्स का जो कलर है वो येलोइश हो गया है। ठीक है, सो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा एंड देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट एंड आई हैव शेयर्ड बोथ ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, अब क्लोरोसिस के बाद हमारे पास हमने दोनों आयंस कर लिए हैं कंप्लीट, नाइट्रेट आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस, वी हैव डन बोथ ऑफ दीज आयंस। लेकिन एक प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट के ही चैप्टर से रिलेटेड एक जो है वो क्वेश्चन है जो कि एक टॉपिक कह लें आप, विल्टिंग। विल्टिंग को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उससे पहले आई वॉन्ट टू जस्ट एडिंग द कॉमेंट्स जो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं ऐड कर लूँ, जस्ट बिकॉज सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर seeing the lecture and Amna Faisal is saying very informative and Anushe Mahmood is saying well described and Amna Faisal is sending some loving faces and some claps और तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं और इन्फॉर्मेटिव है, सो थैंक यू सो मच। नो डाउट यू आर माय स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी एक होता है टीचर्स को भी वाइब्स की ज़रूरत होती है कि भाई एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है एंड यू आर प्रोवाइडिंग मी दिस मोटिवेशन राइट नाउ एज आई एम लाइव इन दिस प्रोग्राम, सो थैंक you so much and stay with me and stay on Gems TV. So moving on, and we are saying कि wilting, the topic, just I am starting the new topic and this is very common things. अगर अच्छा बात क्या है, there is nothing new. आपने ये भी देखा होगा येलोइश कलर के लीव्स आपने बहुत मरतबा देखे होंगे, आपने बहुत मरतबा ऐसे भी देखा होगा एक प्लांट है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, एक प्लांट है उसकी हाइट बहुत कम रह गई। ये कॉमन सी चीज़ें जो हमने देखी होती हैं, ऑब्जर्व बस हम नहीं कर पाते, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं की होती कि ऐसा क्यों होगा। तो आज आपको ये पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, नाइट्रेट आयंस की डेफिशिएंसी और मैग्नीशियम आयंस की डेफिशिएंसी। नाउ हियर इज वी आर हैविंग विल्टिंग टॉपिक, और विल्टिंग क्या है? If more water evaporates from the leaves of a plant than is available in the soil to move into the roots by osmosis, then wilting will occur. अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या इतना मुश्किल कुछ लिख दिया। As you all know, plants are having water from the soil. ठीक है, plants are absorbing water. This water is moving upward side up to leaves. Root hair cell से water leaves तक जो move कर रहा है. Now the question is leaves से कहाँ जाएगा? अब amount of water leaves में बहुत सारा increase हो गया. Now what will happen? वापस डाउनवर्ड साइड मूव होगा या एवापोरेट हो जाएगा थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स। तो क्या होता है, एज यू नो, इसमें मैं अपनी एग्जांपल और ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल देती हूँ कि हमारी बॉडी में जिस तरह से स्वेटिंग होती है, हमारे स्वेट पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्वेट रिलीज हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। स्वेट जो है वो बहुत टाइम तक आपकी स्किन के ऊपर स्टे नहीं करता, एवापोरेट हो जाता है। इन द सेम वे व्हेन लीव्स आर फुल ऑफ वाटर, जब लीव्स के अंदर जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो लीव्स की जो लोअर सरफेस है जिसके अंदर स्टोमेटा ओपनिंग्स होती हैं, उसके थ्रू अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एवापोरेटेड। ठीक है, एवापोरेट हो जाता है, निकल जाता है। ऐसा नहीं होता कि वापस डाउनवर्ड साइड मूव करके सॉइल में चला जाए, नो। तो अब आपको क्या समझ में आया कि अगर वाटर एवापोरेट तो हुआ जा रहा है लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा प्लांट, मतलब कि सॉइल में या तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, या अगर आपके घरों में अक्सर ये विल्टिंग आप देख सकते हैं, दोज who are just having this habit of gardening, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं और आपके घर में पौधे हैं, पॉट ऑफ प्लांट्स हैं, तो आप देखेंगे अगर आप पानी डालना भूल गए या कुछ टाइम जो है वो आपने धूप में उसको ज़्यादा रख दिया और पानी प्रोवाइड नहीं किया, वाटर की सप्लाई नहीं हुई, तो होता क्या है, उसमें वाटर तो एवापोरेट होता रहता है लीव से, लेकिन जब उसको वाटर चाहिए तो सॉइल में वाटर ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आई एम शोइंग यू द डायग्राम जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट को डिस्कस करने के बाद आई एम शोइंग यू द डायग्राम। दिस इज व्हेन ऑल द सेल्स ऑफ अ प्लांट आर नॉट फुल ऑफ वाटर, so the strength of the cell walls cannot support the plant and it starts to collapse. क्या होता है, just see this diagram so you will be able to understand it more clearly कि क्या हुआ। in diagram B आपको नजर आ रहा है कि leaves are having particular shape, they are having, you can observe कि ये क्या है,
you can observe कि water pressure is there. ड्यू टू वाटर प्रेशर यू कैन ऑब्जर्व कि भाई एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की हुई है प्लांट को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ड्राउजी से नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसे समझ लें जब आपको बहुत शदीद तरीन प्यास लग रही है, आप कोई खेल कूद कर आए हैं और आपको पानी भी नहीं मिल रहा, आपको स्वेटिंग हो रही है, उस वक्त आपकी क्या कंडीशन होगी, आप लेथार्जिक हो रहे होंगे। अब प्लांट लेथार्जिक नहीं हो रहा होता, प्लांट के लिए हम टर्म यूज करते हैं विल्टिंग। अब देखें इसके लीव्स क्या हैं, अब इसका वाटर प्रेशर डिक्रीज हो गया ड्यू टू लोअर वाटर प्रेशर, इसके लीव्स आपस में कोलैप्स होने लग गए, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। प्लांट्स क्या हो रहे हैं इस वक्त, इस कंडीशन को कह रहे हैं विल्टिंग। ये कंडीशन क्या कहलाती है प्लांट की, दिस कंडीशन इज नोन एज विल्टिंग, ठीक है। सो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। और विल्टिंग क्यों होती है, व्हेन देयर इज अ लोअर अमाउंट ऑफ वाटर, इफ वाटर इज कंटिन्यूसली एवापोरेटेड आउट फ्रॉम द लीव्स एंड प्लांट्स आर नॉट हैविंग इनफ वाटर इन द सॉइल टू बी एब्जॉर्ब, तो उस वक्त क्या होता है, प्लांट्स लेथार्जिक हो जाते हैं। लेथार्जिक वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए समझने में, और वो विल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप के वी हैव डन दिस टॉपिक, बोथ ऑफ दिस टॉपिक। आज के दोनों हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन टॉपिक तो कंप्लीट हो गए, एक छोटा सा टेस्ट भी होना चाहिए ना, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको समझ में कितना आया और क्या क्या आया, ठीक है। सो सेल्फ असेसमेंट इज देयर, और ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको फौरन फौरन पता चल रहा होता है कि यार मुझे अभी कितना समझ में आया, या ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि अभी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है या क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उसको मजीद देख रहे होते हैं। सो देयर इज वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि स्टेट द नेम ऑफ वन मिनरल आयन, जो हमने आयन्स पढ़े हैं, आपने क्या करना है, बताना है, स्टेट द नेम ऑफ वन मिनरल आयन दैट प्लांट एब्जॉर्ब थ्रू देयर रूट्स, प्लांट एब्जॉर्ब करता है अपनी रूट से, एंड स्टेट व्हाई द प्लांट्स नीड दिस मिनरल आयन। और आपने ये भी बताना है, पहले नाम बताना है और फिर ये बताना है कि प्लांट को क्यों जरूरत है उस मिनरल आयन की। So this is first question. This is very easy. I am just having this question for a few seconds on the screen ताकि आप देख लें सब, और फिर मैं second question पे switch करूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को दोनों एक साथ solve करके दिखाऊंगी, ठीक है। So again I am reading this question. State the name of one mineral ion that plants absorb through their roots and state why the plants need this mineral ion. आपने नाम बताना है मिनरल आयन का, आप दो आयन्स पढ़कर आए, उसमें से आप कोई भी आयन का नाम बता सकते हैं और प्लांट को उसकी क्यों जरूरत होती है ये भी बता सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड इट इज सेइंग टू ग्रो अ प्लांट नीड्स अ सप्लाई ऑफ नाइट्रेट आयंस, ठीक है। फॉर द ग्रोथ प्लांट रिक्वायर्ड व्हाट, नाइट्रेट आयंस। आपने बताना है एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस, प्लांट को क्यों जरूरत होती है नाइट्रेट आयंस की, आपने इसका रीजन बताना है, ठीक है। सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। आई होप कि ये बहुत इजी लग रहे हों आप लोगों को भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मुश्किल है ही नहीं। लेकिन until or unless I am having replies, और वो फौरन नहीं आते क्योंकि few of you are seeing these lectures afterwards, फौरन सब लाइव नहीं देख पा रहे होते, तो they are sharing their answers afterwards, जब भी होता है फिर वो मैं उनके रिप्लाईज जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में शेयर कर रही होती हूँ। सो आई एम जस्ट चेकिंग आउट कि अगर कोई आया है आप रिप्लाई तो इट्स फाइन, अदरवाइज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई क्या हो सकते हैं इसके आंसर्स, ठीक है। सो अगेन आई एम मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको ये चीज़ पता है कि वी हैव लर्न एंड NCAI सिलेबस देयर आर 2 मिनरल आयंस, ठीक है। आपने क्या करना है अपनी मर्जी से, इट्स योर चॉइस कि आप उसमें से कोई भी एक आयन को चूज कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं जो है वो चूज कर लेती हूँ भाई कि भाई नाइट्रेट आयंस, इफ आई एम सेइंग, अच्छा मैं आपको दोनों बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर। मिनरल आयन, नेम ऑफ द मिनरल आयन नाइट्रेट आयन, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन, इट इज मेकिंग
अमाइनो एसिड्स, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं मेकिंग प्रोटीन्स। ठीक हो गया? सो दिस इज, if you are writing both of these things, name of the mineral is having 1 mark, needed for किस लिए जरूरी है having 1 mark. So total there are 2 marks for this question. अगर आप ये लिखते हैं तो you will get full marks. अगर आपके जहन में नाइट्रेट आयन नहीं आता, अगर आपके जहन में मैग्नीशियम आयन आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप यहां पर लिखेंगे मैग्नीशियम आयन, और इसका फंक्शन क्या है? टू मेक क्लोरोफिल। ठीक है? सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। अब आ जाते हैं, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन जस्ट आस्क टू मी। अब आ जाते हैं, इफ अ प्लांट नीड अ सप्लाई ऑफ नाइट्रेट आयन, एक्सप्लेन द रीजन। आपने एक्सप्लेन करना है रीजन किसका, कि प्लांट को क्यों जरूरत है नाइट्रेट आयन की। सो वेरी इजी एंड सिंपल थिंग्स, कि भाई 2 मार्क्स ही हैं इसलिए हमने लॉन्ग नोट तो लिखना नहीं है। आपने मेंशन करना है कि नाइट्रेट आयन कंटेन नाइट्रोजन, और ये क्या करती है? मेक अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स। और ये क्यों जरूरी हैं? ये जरूरी इसलिए हैं, आपके पास अब आप ये भी मेंशन कर सकते हैं फॉर ग्रोथ, ठीक है, और फॉर रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, ठीक है, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स, लेकिन हम वही वाली चीज है, वी हैव टू सी द मार्क्स एज वेल। बहुत सारा हम नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। आपने ये पॉइंट्स लिख दिए, नाइट्रोजन लिखा है, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, सो यू विल हैव 2 मार्क्स, 2 आउट ऑफ 2। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे। वी हैव डन विद दीज 2 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट फुल मार्क्स 2 आउट ऑफ 2। ये आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ द लास्ट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर you can say program, the last thing, I'm just leaving one question in front of you, and that is a think tank question, or think tank you are having your brain as the fastest machinery। मैं ये कहूँगी fastest word is basically incorrect, लेकिन fast को मैंने बहुत कुछ एक्सप्रेस करना था तो इसलिए मैंने फास्टेस्ट कह दिया आपको। तो थिंक टैंक का क्वेश्चन आई एम लीविंग, और उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू कि व्हाई डू वी हिकअप्स, हम हिचकियां क्यों लेते हैं या हमें हिचकियां क्यों आती हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस होल वीक, और आपने इसको थोड़ा सा सर्च करना है और सोचना है कि भाई ऐसा क्यों होता है, और जो है वो हम कैसे हिकअप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और होती क्यों है, रीजन क्या है। अब आप लोग ये नहीं लिख दीजिएगा, अगर कोई हमें याद कर रहा होता है तो हमें जो है वो हिचकियां आनी शुरू हो जाती है, तो सबसे ज्यादा तो फिर हमें वो वर्ड बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, छोड़े रहने देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई याद कर रहा है तो आपको हिचकियां आनी शुरू हो जाए, ये सिर्फ मिथ है। लेकिन हमें हिचकियां क्यों आती हैं, व्हाई डू वी हिकअप्स, यू हैव टू सर्च इट आउट। आपने कभी सर्च नहीं किया होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज अ थिंक टैंक क्वेश्चन फॉर दिस होल वीक। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू गूगल इट, और जो भी आपको रिप्लाई मिलता है उसको प्रोसेस करने के बाद आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन। द प्रोग्राम इज़ देयर ऑन द यूट्यूब, आप इस पे अपने रिप्लाई ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, so you are feel free to ask anything anytime on my WhatsApp, as my WhatsApp number is there available, 03472321 This is the number of mine, and Gems TV number is also there on the screen, 031331616636. So stay tuned on Gems TV and keep watching my program.
दी ऑनलाइन लेक्चर दी बायो टीचर विद मुनीरा खान, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। इसी तरह से पढ़ते रहना है और पढ़ना नहीं छोड़ना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और वेदर चेंजेस आर ऑल्सो देयर, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट थर्सडे को। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।